So we'll start chemical reaction and equations. So first example is when a milk is left on room temperature, it will definitely freeze or convert it into curd. Iron thaw will left in atmosphere, then the iron left will be exposed, and grapes will be fermented, and food will be cooked. Means when the food is cooked, it will be spoiled. Food gets digested in our system. So now we start an activity like what is initiated in NCERT book, class 10th, chemical equation and reactions, chemistry chapter, science. In all of these situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. Means I have read all of these examples previously, that what will change. We have learned about physical and chemical changes, like we already discussed, like we already we read at class 9th physical change and chemical change. So in our previous classes, whenever a chemical change occurs, we said a chemical reaction has taken. Means what? अगर कोई भी chemical reaction occurs करता है, उसमें क्या होगा? Chemical reaction place होगा. So you perhaps be wondering as to what exactly meant by the chemical reaction. और हम लोगों को पता ही है chemical reaction क्या होता है. जैसे कि अगर मैं एक माचिस की तीली को जलाऊं, वो बर्न होगा. बर्न होने के बाद क्या होगा? स्टिक को एस में कन्वर्ट होगा, मीन्स साई में कन्वर्ट होगा. सो इधर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हम लोग उसमें उसको समझते और पढ़ते हैं. क्या है एक्टिविटी नंबर 1? द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस. इट वुड बी द बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुइटेबल गियर ग्लासेस. लाइक this activity contains means chemical reaction, so we have to perceive like conservations and some tools like eyeglasses, helmet, or something else, toe, tongue, and Bushen burner. As you see, Bushen burner, tongue, magnesium ribbon, was glass, magnesium oxide. So, what will happen to this experiment? Clean a magnesium rubber about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Like what? अगर हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन को लेकर 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग में कट करने के बाद रबिंग करें, उसको सैंड पेपर से रब करें, अच्छे से रब करें, बाद में होल्ड करके एक टोंग में पकड़े और बर्न करें. तो स्पिरिट लैम्प से जो ग्लास में कलेक्ट होगा एस, जो साई है, वो वॉश ग्लास में कैप करने से वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. यही है एक्सपेरिमेंट. सो मूव टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. You must observe the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. Like top of the flame is called dazzling white flame and changes into a white powder. And magnesium will burn, and like what? It would change into magnesium powder. So the powder is magnesium oxide, और वो जो powder है वो क्या होगा? magnesium oxide होगा. अभी it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. और जो हवा में मौजूद होता है, जो हवा में क्या होता है? एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो बर्न करने से मैग्नीशियम के साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा. एक्टिविटी 2. Take a lead nitrate solution in a solution tube. Add potassium hydrate solution to this. What observe? Activity number 2. As you can see the picture, like in the top of a colonical flux, we must have cork, glass tube, hydrogen gas, colonical flux, dilute sulfuric acid, and zinc kernels. It will react by oxygen and release hydrogen gas. Move to our next activity. Take a few zinc kernels, colonical flux test tube, and और हम लोग अगर जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक जो छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मीन्स क्या करेंगे, तो हैंडल करेंगे तो क्या फ्लोइंग होगा?
For the above three activities, we say that any of the following observation helps us to determine whether the chemical reaction has taken, like change in solid, सॉलिड से चेंज होगा, जैसे कि मैग्नीशियम जब सॉलिड से पाउडर में चेंज हुआ, कलर लाइक मैग्नीशियम रिबन का कलर जो था वो ऐश का कलर में हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस लाइक ये जो एग्जांपल दिखा रहा है, एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, बबल्स बबल्स उठेगा। सो नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर जिंक जिंक जैसे देख सकते हैं आप लोग, जिंक अगर सल्फ्रिक एसिड से डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, उसमें टेम्परेचर सडन हीट अमाउंट रिलीज होगा। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, हम लोग एक्टिविटीज से समझ चुके हैं। तो अभी ये द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन इट विल बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये है रिएक्टेंट्स, मीन्स जो जिसके साथ रिएक्शन होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल ए एंड एग्जांपल टू, एक बॉय वन बॉय टू आपस में फाइट करेंगे और फाइट का रिजल्ट क्या होगा, एक का नाक टूट जाएगा। ऐसे ही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंज इन द रिएक्शन magnesium and oxygen are reactants. The new substance is the magnesium oxide formed during the reaction as product. What equation shows change in reactants to the product through the arrow placed between them? The reactants are written on the left hand, मीन्स जो रिएक्टेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और जो रिजल्ट होगा वो राइट हैंड साइड होगा। सिमिलरली इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी देखो, केमिकल इक्वेशन रिटन ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। अभी छोटा कुछ केमिकल इक्वेशन है क्या, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अभी ये समझते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, ऑक्सीजन का है O, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2। तो अभी देखिए इसको कैसे रिटर्न करेंगे। अभी देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू प्रोडक्ट में क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखो इसमें क्या करेगा, काउंट करना पड़ेगा, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। अभी एटम कितना है, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन दो है, लेकिन प्रोडक्ट क्या निकला है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अभी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ द स्टडी, क्लास 9 में हम लोग जो पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि मान लो अगर मैं पानी पीता हूँ, पानी और खाना खाता हूँ, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि वेस्टेज में मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद वेस्ट जो निकलेगा वो सेम अमाउंट में होगा, सेम अमाउंट में होगा। सो इसलिए कैसे कैसे मिलेगा, जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि अभी अभी केमिकल जिंक का केमिकल फॉर्मूला है कि कितना एटॉमिक जिंक जेटन एंड सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला ये है, और जिंक सल्फेट प्लस ये। अभी इसको इमेजिन करते हैं कैसे, जिंक जिंक का कितना है, एटम नंबर 1, रिएक्टेंट एक है, बाद में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो, सल्फाइड एक है और ऑक्सीजन चार है। अभी प्रोडक्ट में देखिए, जिंक सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है दो दो, सल्फ्रिक वो भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। इसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट अभी मिलते हैं हम लोग, आयरन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी केमिकल इक्वेशन को कैसे, स्टेप 1, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड, ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। बाद में उसके एटम को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड से। जैसे आयरन कितना है, रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में तीन है। हाइड्रोजन कितना है, दो है सेम है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। अभी क्या इसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3। अभी इनिशियल में जो जिसके साथ जितना है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का, प्रोडक्ट में जितना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप 4 क्या है, उसको इंटू करके प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा। एग्जाम्पल 5 क्या है,
और इक्वेशन को एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना पड़ेगा, उसके मिलाना पड़ेगा। सिंबॉलिक एंड सब्सटेंसेस फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि आयरन 3 है, 3 3 3 सेम है, 3 3 सेम सेम हो गया। हाइड्रोजन 4 4 4 ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 4 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सामने 4 आ गया। तो आज के लिए इतना ही सब लोग। अभी सब लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूँ। आगे का हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट शुड बी मैग्नीशियम रिबोन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबोन को क्लीन करते हैं? क्योंकि रिएक्शन करने के लिए। अगर हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। राइट द बैलेंस की इक्वेशन। इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसका केमिकल क्या करो, बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन। ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग करके मुझे सॉल्व करें, कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।